Hello students, in the previous class we have taken example on a scalar product, that is means on the dot product. Today we will solve some more examples again on the same dot product. So here see 4 examples are written. So this first example, that is from the exercise what is 5.3, and then remaining 3 examples from the miscellaneous exercise. So see in the first example here. So here example 4. So see here what is given. So show that the sum of the length of the projections of vector P vector I cap plus Q vector J cap plus R vector K cap on the coordinate axis where values of P, Q and R are given is 9. And what you have to do? You have to find you have to prove here sum of the projections on the coordinate axis. Coordinate axis with the x-axis, y-axis, z-axis. That means you have to find the projection of this vector. Projection of this vector on the x-axis, y-axis and z-axis, and then you have to prove that their sum is nothing but what is 9. Okay, so see here what is given. So here this vector is given, so we will take this vector as vector A. Vector A is equal to what is given, P I cap plus Q J cap and plus what is R K cap. See here this vector is given, vector A. And again here what is given, values of P, Q and R are given, where P is equal to what is 2, Q is equal to 3 and R is equal to 4. And that means here what we will get, vector A is equal to, yes, you will get 2 I cap plus 3 J cap and plus what is 4 K cap. So see here this is vector A. So now what you have to do? You have to find the projection of vector A along the x-axis, then y-axis and z-axis. So therefore here we will find projection of vector A on x-axis. That means we can say along what is vector I cap. Along vector I cap बोलो या on vector I cap, on vector I cap, because we know that along the x-axis what is vector I cap is there. So we know projection formula क्या है, projection of vector A on vector B अगर दिया है तो formula क्या आपको मालूम है क्या है, vector A dot B upon mod of vector on vector B है तो divide by vector B, divide by क्या रहेगा mod of vector B. तो here what will get, vector I dot vector vector A dot vector I cap divided by mod of vector I cap. ठीक है, तो देखो अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं आप. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए. वेक्टर ए मीन्स वी कैन राइट व्हाट इज दिस इज, वी कैन राइट 2 3 4 2 3 4 डॉट वेक्टर आई मीन्स व्हाट इज 1 0 0 एंड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड यानी क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं बिकॉज आई इज ए यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है 1. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू टेक डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इनटू सेकंड टर्म इज व्हाट विल गेट 0, थर्ड टर्म इनटू थर्ड टर्म इज अगेन 0 डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस यू विल गेट 2. See here, this is what projection of vector A on x-axis A, that means on vector I. Similarly, we can find what is projection of vector A on y-axis, that means on what vector J. So what will be the formula then? Vector A dot vector J divided by mod of vector J, because on vector J है, ठीक है, दोनों यानी ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय ऑन व्हाट वेक्टर यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. हाँ, तो अगेन वेक्टर ए व्हाट इज 2 3 4 डॉट वेक्टर जे मींस व्हाट 0 1 0, क्योंकि नो वेक्टर आई कैप एंड के कैप टर्म देयर, तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर जे कैप मींस 1, बिकॉज जे कैप व्हाट इज यूनिट वेक्टर है. तो take dot product, see here, first term into first term means 0, second term plus 3
Third term into third term means what will get 0 divided by 1, and that means you will get here 3. Okay? And exactly in the same manner, what you have to do? You have to find projection of, so we can say now projection of vector A on z axis, and z axis means what? That is vector k cap, formula vector I dot k cap divided by mod of vector k cap. ठीक है? तो देखो अगेन वेक्टर A is what? 2 3 4 dot, this is what? 0 0 and 1, and divide by again mod of k cap is what? 1, क्योंकि what is k cap is a unit vector. So therefore if you take, what will get here? First term into first term is 0 plus again 0, third term what will get? 4 divided by 1, and that means here 4. अब देखो ये तीनों का एडिशन करना है, तो वी आर गेटिंग हियर 2 then 3 and 4, and therefore what is? Therefore sum of, what is all there? Sum of the length of projections on coordinate axis is equal to, हाँ तो फर्स्ट प्रोजेक्शन कितना आया था? 2 प्लस सेकंड प्रोजेक्शन क्या आया था? 3 एंड थर्ड प्रोजेक्शन क्या है? 4. दैट मीन्स विल गेट 9. देखो यानी सिंपल एग्जांपल है, यानी आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दैट मीन्स ऑन वेक्टर आई, जे एंड के. तो यू हैव टू राइट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दैट, and then you have to add all this projection. Okay, then see next example. So see here, now this is example 6 here. So this is from miscellaneous exercise. This example is given on the page number 190. So see here what is given. What is given? So here mod of vector A is equal to mod of vector B is equal to what is given as 1. Again here what is given? Vector A dot vector B is equal to 0. Okay? And then again this one is given, vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, and then we have to find वेक्टर्स मॉड ऑफ वेक्टर सी, यानी आपको क्या करना है? मॉड ऑफ वेक्टर सी फाइंड करना है. ओके, तो सी हियर वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर सी, एंड हियर व्हाट इज गिवन? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0. तो विल कंसीडर दिस वन. कंसीडर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0. In the beginning itself I have told, whenever vectors are not given in terms of ijk, and if you have to find the magnitude of that vector, क्या होता था मैंने कि कोई भी वेक्टर का अगर आपको मॉड फाइंड करना है, मॉड ऑफ है तो उसका स्क्वायर लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर ए डॉट ए. If the vectors are given in terms of ijk, then no problem, we can take square root of क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर. मगर अब यहाँ पे आपको मॉड ऑफ सी फाइंड करना है, तो देखो ये इक्वेशन दिया है, तो इससे क्या करेंगे अपन? वेक्टर सी इज इक्वल टू, हाँ तो क्या आ जाएगा? ये दोनों टर्म निगेटिव हो जाएंगे, तो मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. बोथ टर्म्स विल बिकम निगेटिव, सो आई टेकन माइनस साइन कॉमन. तो हियर व्हाट विल डू? कंसीडर mod of vector c square. So see, I will take this as equation, suppose 1. A mod of vector c square means what? Vector c dot vector c. This is equal to minus vector a plus b dot minus vector a plus b. We can say from equation 1. Similar this now. So this minus into minus means plus. That means we will get vector a plus b dot vector a plus vector b. Similar this, what will get? Vector a dot vector a, then plus vector a dot vector b
plus vector b dot vector a and plus vector b dot vector b. We know dot product is distributive. Similar this, so you will get here mod of vector a square. अब देखो यहाँ पे a dot b equal to 0 दिया है, आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव यानी b dot a also 0, तो ये रहेगा 0, ये भी 0 रहेगा, प्लस mod of vector b square. So here we can write since vector a dot b is equal to b dot a is equal to 0. अब देखो यहाँ पे ये भी दिया है mod of vector a और mod of vector b इक्वल है और 1 है, तो therefore ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज हियर 1 का स्क्वायर, since mod of vector a is equal to mod of vector b is equal to 1, and that means we will get 1 plus 1, that means 2. So therefore we are getting mod of vector c square is equal to 2, and therefore mod of vector c is equal to what will get root 2. Remember, don't take plus minus because this is magnitude and magnitude is always positive. Okay, देखो सिंपल है, देखो ये गिवन है mod of b equal to 1, a dot b 0 है, एंड ये इक्वेशन दिया है और आपको mod of c फाइंड करना है. सपोज अगर आपको यहाँ पे mod of a फाइंड करने का रहा तो क्या करेंगे अपन, वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में वेक्टर b प्लस वेक्टर c, एंड फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड डेफिनेटली mod of वेक्टर a. तो mod of वेक्टर a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा a डॉट a, उससे ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो वहां पे फिर क्या दिया रहेगा, दूसरी कंडीशन देके रहेंगे मगर. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो. अब ये एग्जाम्पल 22 है, पेज नंबर 191 पे मिशन एक्सरसाइज में का एग्जाम्पल 22 है. Because in the book examples are given randomly, so just we are collecting same type of examples. हाँ, तो देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 22 क्या दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स such that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0. Then you have to find vector a dot b plus vector a dot c plus vector c dot a. So here this is given. We can say since vector a, vector b and vector c are unit vectors, therefore what will get, mod of vector a is equal to mod of vector b is equal to mod of vector c, and this is equal to what is 1. So we will take this as equation 1. देखो यहाँ पे ये दिया है वेक्टर a, वेक्टर b and वेक्टर c are unit vectors such that vector a plus vector b plus vector c is equal to 0. तो consider this vector a plus vector b plus vector c is equal to क्या दिया, 0. अब देखो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करना है. तो अब देखो यहाँ पे ये दिया है, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0. 0 का मॉड 0 रहेगा, तो वैसे भी नंबर है. ठीक है, अब अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, डज इट मेक एनी डिफरेंस, तो देयरफॉर वी कैन से equal to 0. And now you have to use that result. See, mod of this square is equal to 0. इसका मतलब this can be written as vector a plus vector b plus vector c dot vector a plus vector b plus vector c is equal to 0. आपको ये रिजल्ट मालूम है इन जनरल, वेक्टर व्हाट इज u डॉट वेक्टर u यानी mod of u स्क्वायर, या mod of u स्क्वायर का आप इस तरह से लिख सकते हैं. बस सिंपली कर लो एंड यूज रिजल्ट 1, यू विल गेट द आंसर. तो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट विल गेट, वेक्टर a डॉट a प्लस वेक्टर a डॉट b प्लस देखो इसको वेक्टर a डॉट c प्लस वेक्टर b डॉट a प्लस वेक्टर b डॉट b प्लस वेक्टर b डॉट c, ओके, प्लस वेक्टर c डॉट a प्लस वेक्टर c डॉट b प्लस वेक्टर c डॉट c इक्वल टू 0. देखो मल्टीप्लाई करो, पहले a से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, बाद में वेक्टर b से, बाद में वेक्टर c से. नाउ सिंपली दिस. अब देखो यहाँ पे a डॉट a यानी क्या होता है, मॉड ऑफ a स्क्वायर.
एंड वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, देयरफॉर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं अपन डायरेक्टली, क्या आ जाएगा प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, बाद में इसको भी ले लेते हैं ए डॉट सी और सी डॉट ए है, यानी प्लस क्या आ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट सी एंड प्लस वेक्टर 2 वेक्टर व्हाट इज यार, देखो सी डॉट बी है, बी डॉट सी है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड प्लस देखो अब यहाँ पे क्या बचा, देखो बी डॉट बी यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर एंड सी डॉट सी यानी क्या आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, मॉड ऑफ ए क्या है 1 है, तो विल गेट हियर 1 स्क्वायर प्लस फ्रॉम दिस जस्ट वी कैन टेक 2 कॉमन, वेक्टर ए डॉट बी अरेंज कर लेते, ये लिखते बाद में वेक्टर बी डॉट सी, ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट सी या सी डॉट ए लिखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, अगेन ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ पे लिख सकते कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसलिए इसको ऐड किया मैंने, तो देखो क्या आ जाएगा, तो देखो पूरी आ जाएगा 2 इन द ब्रैकेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए होगा, तो उस टाइप से लिख लेते हैं, क्या लिखा है देखो, क्या दिया सी डॉट ए है, तो इसको मैं सी डॉट ए लिख सकता हूँ, सी डॉट ए प्लस देखो ये 1 1 1 है ना 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 3 को शिफ्ट कर दो उधर, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए, यहाँ पे इंटू 2 है इज इक्वल टू व्हाट इज -3 एंड देयरफॉर विल गेट वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो ये एग्जाम्पल वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1, देन दिस इक्वेशन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। तो क्या किया मैंने, ये वेक्टर का सम 0 दिया, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड ऑल्सो 0 रहेगा, उसका स्क्वायर अगर लिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड 0 का स्क्वायर 0 रहता है, और फिर यहाँ पे देखो ये वाला रिजल्ट यूज किया है मॉड ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू डॉट यू, इसको यूज किया मैंने यहाँ पे और फिर एक्सपांड किया है, और अब यहाँ पे दोनों को ऐड किया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव करके यहाँ पे, इसीलिए 2 टाइम्स लिखा है मैंने, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए रहेगा, तो इसको सिम्पल करो उस टाइप से, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मेरा एग्जांपल है पेज नंबर अगेन 191 पे, देखो इसको करते हैं अब। तो देखो अब ये एग्जांपल में क्या दिया, इफ ए पैरेललोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी पैरेललोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर पी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 2 एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज व्हाट इज 5/3, देन शो दैट द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम का जो रेशियो है ये √7:√3 ये प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम क्या किया, ये 2 साइड पे कंस्ट्रक्ट किया, यानी इसका मतलब देखो, यानी इस टाइप से अगर आपने पैरेललोग्राम लिया तो एक साइड वेक्टर ए रहेंगी, दूसरी साइड क्या रहेंगे वेक्टर बी, नेचुरली ये वेक्टर ए तो ये साइड वेक्टर ए रहेंगी, ये साइड वेक्टर बी है तो ये साइड वेक्टर बी रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले गिवन थिंग लिख लेते हैं, तो दिस इज गिवन vector A is equal to what is given 3 vector P minus vector Q, vector B is given as what is given vector P plus 3 vector Q, vector P plus 3 vector Q, okay, again what is given, mod of vector P is equal to
मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू 2। चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अगेन व्हाट इज गिवन, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q, एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन π/3। ठीक है, और आपको प्रूव करना है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब लेंथ ऑफ द साइड यानी क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी लेंथ बोले तो मॉड फाइंड करना पड़ेगा, इसकी लेंथ बोले तो मॉड ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे फाइंड करना आपको मालूम है, वही कंसेप्ट यूज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कंसीडर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू, यानी आपको मॉड ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, मॉड ऑफ बी लेंथ, और फिर उसका जो रेशियो है वो √7:√3 आपको प्रूव करना है। अब ए डॉट ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, देखो यहाँ पे दिया है, तो व्हाट विल गेट हियर 3 वेक्टर p माइनस वेक्टर q डॉट 3 वेक्टर p माइनस वेक्टर q फ्रॉम गिवन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप फ्रॉम गिवन, या इसको भी नंबर देना होगा तो दे सकते हैं। बस अब सीधा इधर सिंप्लीफाई करना है, क्या जाएगा यहाँ पे 9 वेक्टर p डॉट p, देखो ये माइनस 3 वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा नहीं क्या, माइनस q डॉट दिस वन, यानी क्या आ जाएगा माइनस 3 वेक्टर q डॉट p एंड माइनस माइनस प्लस वेक्टर q डॉट q, दिस इज इक्वल टू, तो विल गेट हियर व्हाट इज 9 मॉड ऑफ वेक्टर p स्क्वायर, बराबर है। देखो ये कंसेप्ट, ये रिजल्ट यूज करें अपन, मॉड ऑफ वेक्टर u स्क्वायर, देखो सिंपल रिजल्ट है बट दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -6 टाइम्स ऑफ वेक्टर p डॉट वेक्टर q एंड प्लस व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर q स्क्वायर। यहाँ पे चाहे तो रीजन लिख लेते हैं, सिंस वेक्टर p डॉट q इज इक्वल टू q डॉट p। ठीक है, तो वैल्यूज एक साथ पुट कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 9 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर p स्क्वायर माइनस 6। नाउ p डॉट q क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या जाएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म मॉड ऑफ सेकंड टर्म कॉस ऑफ एंगल बिटवीन p एंड q, क्या दिया, देखो π/3 दिया है, तो दिस इज π/3 एंड प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, and now we know value of mod of vector p and mod of vector q, so this is what 9 into 2 square, देखो this is given minus 6 into 2 again into 2 cos π/3 cos 60 कितना, cos 60 is 1/2 and plus ये आ जाएगा 2 square, बराबर ना, cos 60 1/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू लिख दे डायरेक्टली, यानी ये आ जाएगा 36 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 कैंसल, यानी ये आ जाएगा 12 एंड प्लस व्हाट इज हियर 4, देखो कितना आता है, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 12 यानी क्या आ जाएगा 28 एंड देयरफॉर विल गेट हियर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 7 यानी विल गेट 2√7। ठीक है, तो इसको लेते हैं इक्वेशन सपोज ए, देखो एक साइड मिल गया अपने को मॉड ऑफ वेक्टर ए, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर आपको क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है, बिल्कुल सेम टाइप से। बिल्कुल सेम टाइप से, और रेशियो क्या प्रूव करना है अपने को, √7:√3 है, देखते हैं। हाँ, तो क्या आता है देखो, आप क्या फाइंड करेंगे, कंसीडर, सिमिलरली नहीं लिख सकते यहाँ पे, कंसीडर मॉड ऑफ वेक्टर q स्क्वायर, ये सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर क्या b, तो दिस इज व्हाट वेक्टर b डॉट b, दिस इज इक्वल टू हाँ वेक्टर b व्हाट वेक्टर p प्लस 3 वेक्टर q डॉट वेक्टर p प्लस 3 वेक्टर q,
बिल्कुल सेम टाइप से सिंप्लीफाई करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर p डॉट p प्लस, देखो इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वेक्टर p डॉट q प्लस 3 वेक्टर q डॉट p एंड प्लस 9 वेक्टर q डॉट q। सिंपली दिस, तो व्हाट विल गेट, p डॉट p यानी मॉड ऑफ p स्क्वायर प्लस ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा 6 वेक्टर p डॉट वेक्टर q एंड प्लस 9 मॉड ऑफ वेक्टर q स्क्वायर। अब बार बार रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं, लिखा है वहां पे, ठीक है, सिंपली कर लो। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर p स्क्वायर प्लस 6 मॉड ऑफ p मॉड ऑफ वेक्टर q कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना दिया है, π/3 है, एंड प्लस व्हाट इज 9 इंटू मॉड ऑफ q स्क्वायर। और अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मॉड वेक्टर p और मॉड वेक्टर q की वैल्यू कितनी सेम है, 2 है, तो विल गेट हियर 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू व्हाट 1/2 प्लस 9 इंटू व्हाट इज 2 का स्क्वायर। सिंपल कर लो, तो क्या जाएगा यहाँ पे 4, अगेन दिस 2 विल गेट कैंसल यानी 12 प्लस कितना 4 इंटू दिस है 36, तो विल गेट 40 और ये 12 52, तो ये हो गया मॉड ऑफ बी स्क्वायर सॉरी, यानी क्या जाएगा मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ कितना 4 इंटू 13 एंड दैट मीन्स 2 रूट 13, तो ये हो गया बी। अब देखो रेशियो, तो देयरफॉर रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 2 रूट 13, वी कैन से फ्रॉम ए एंड बी, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा, दिस विल गेट कैंसल रूट 7 बाय रूट 13 एंड दिस इज इक्वल टू वी कैन से रूट 7 इज टू रूट 13। देखो ये हो गया आंसर, ठीक है। देखो थोड़ा एग्जाम्पल को केयरफुली पढ़ो आप, क्योंकि वहां पे दिया है कि साइड्स आर गिवन बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड आपको क्या प्रूव करना था, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। अब देखो ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी वेक्टर जब आपको फाइंड करना है, अगर ये वेक्टर है अगर ऐसा दिया होगा इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो आपको मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई कैप का स्क्वायर प्लस स्क्वायर व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर लेते हैं। और अगर नहीं दिया होगा वो आई जे के फॉर्म में, तो इन दैट केस आपको हमेशा ये रिजल्ट यूज करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लेना है, यानी ए डॉट ए, और बाद में फिर उसका रूट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो ये भी एग्जाम्पल वैसे इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है। Next time we'll take examples, some geometrical examples by using dot product. Chalo, bye. Thank you.